on, let me first tell you about myself. I am Abhishek Chopra and I'm from Delhi NCR. And I am a patriot, a creative man, and a man with new ideas. So I never say no to any opportunity that comes my way. And I always believe in one thing that books are a foundation, but learning, a remarkable learning experience is the one through which you learn and grow. आप लोग अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं और उसी से ग्रो करते हैं. सो बुक्स पर इतना डिपेंड हो कि आपका फाउंडेशन अच्छा बने, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस आपको रोज नई नई चीजें सिखाए. नाउ आई एम अ मैथमेटिक्स ग्रेजुएट and more than 16 years of experience I have with different industries like media, events, automobile, telecom, real estate, retail, FMCG, IT and ITES के साथ मैंने पार्ट टाइम काम किया है क्योंकि उनके यहाँ वॉइस एंड एक्शन ट्रेनिंग और नेटवर्किंग की ट्रेनिंग देता था. So hospitality industry, ये तो with when I was in Indore, I was with hospitality industry, and there are several other industries that I've worked with. Now I've traveled to more than 40% of the country till now for my work, and I've won several awards for my marketing practices and new concepts and launching of different properties of the hospitality industry. Now let's come to the major topic that we are here for, which is why English. देखिए मैं आज जो आपको एक डेमो देने वाला हूँ उसमें मैं हिंदी का ज्यादा यूज करूंगा क्योंकि अभी ये इनिशियल स्टेजेस है. अगर मैं इंग्लिश में बहुत ज्यादा बात करूंगा तो you would be not be getting the exact points what I want to brief you upon. So let me just start. Why English? There are reasons to it why we want to. There are reasons to it why we want to learn English. First of all, it is the international business language. हर country में, हर business में, English is the most common language throughout the world. It is used and most acceptable language across the world, because as we all know, there are maximum countries in the world who are Christian dominated countries and their mother language is English. Now, why we say it is computer acceptable language? Because most of the computers in the world, they understand English. Though backend mein binary language and all these languages work, programming languages work, but all these languages are dependent on English. Now, even you talk about media and social media, the most acceptable language is English. They are designed in English because they come from various countries abroad and various countries from different areas of the globe. So it is also acceptable on social media and media. Multi-industry acceptable language. It is acceptable throughout the business world, throughout the industries, throughout all all multiple levels of people. And now globally, ये एक पॉइंट है जो मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान से समझें क्योंकि ये आगे भी बहुत यूज होने वाला है. ग्लोबली सिमिलर यूज ऑफ द लैंग्वेज. अब आप हिंदी को देखें तो हिंदी जो है वो बिहार में अलग तरह से बोली जाती है. फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में खीरा अलग होता है, ककड़ी अलग होता है. बट अगर आप इंदौर जाएं तो इंदौर में खीरे को भी ककड़ी बोला जाता है और ककड़ी को भी ककड़ी बोला जाता है. सो इंग्लिश में अगर कोई गोभी है तो गोभी को कॉलीफ्लावर हमारे यहाँ भी इंडिया में भी बोला जाता है. कॉलीफ्लावर इंग्लैंड में भी वही बोला जाता है, अमेरिका में भी वही बोला जाता है. सो दैट इज व्हाई वी से इट इज ग्लोबली अ सिमिलर यूज फॉर द लैंग्वेज. Now we come to differences between English and our regional languages. I have taken the major language as Hindi. तो इसका फर्स्ट पॉइंट आता है, इंग्लिश जो है वो नॉन फेनेमिक लैंग्वेज है. नॉन फेनेमिक लैंग्वेज का मतलब होता है जो जैसी बोली जाती है वैसी, जो जैसी लिखी जाती है वैसी बोली जाए या ना बोली जाए इसका कोई जरूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल पीयूटी पुट होता है तो बीयूटी बुट नहीं, बीयूटी बट होता है. तो स्पेलिंग्स जो है वो सेम लगती हैं लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है.
हिंदी में हिंदी जैसी लिखी जाती है वैसी ही बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी ई, म, ल, बड़ी की मात्रा इमली, ये हर जगह ऐसी ही रहेगी क्योंकि ये एक फोनेमिक लैंग्वेज है, जैसी लिखी जाती है वैसी ही बोली जाती है। नाउ वी कम टू one, I would say this is not a difference, this is a similarity as well as a difference. आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कि इंग्लिश में 5 वावल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन इससे कितनी साउंड्स आती हैं ये किसी ने आपको सिखाया नहीं होगा स्कूल में। इससे 14 तरह की अलग अलग साउंड्स निकलती हैं ए, ई, आई, ओ, यू से, और एक अलग साउंड है जिसको कहते हैं श्वा। सो ये सारी वावल साउंड्स हैं, और हम लोगों ने अपने स्कूल्स में सीखा है वावल्स। वावल्स सही वर्ड नहीं है, इट्स अ वावल, वावल साउंड। हिंदी में मात्राएं होती हैं। अब मात्राएं हमारे यहाँ छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, ऐसे करके मात्राएं होती हैं, जो हमारे यहाँ देखा जाए तो वर्णमाला में वावल साउंड्स का ही काम करती है। अब हम आते हैं कॉमनली द सेम अक्रॉस द वर्ल्ड। इंग्लिश जो है, इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में सेम ही है, जबकि अगर आप हिंदी पे आए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये हर रीजन टू रीजन डिफर करती है। हिंदी के कुछ शब्द मेरे यहाँ कुछ और हैं, आपके यहाँ कुछ और होंगे। राजस्थान में उसको कुछ और बोला जाएगा, और हरियाणा में कुछ और बोला जाएगा। लेकिन इंग्लिश में हर चीज का एक ही वर्ड है, एक ही मतलब है। इंग्लिश जो है वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, और हिंदी जो है वो बहुत कम रीजन्स में एक्सेप्ट होती है, क्योंकि हिंदी इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। एक्सक्यूज मी। अभी आता है प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश ज्यादातर जो है, देखिएगा, आप अपना मुंह खोल के देखिएगा कि जब आप इंग्लिश बोलने लगे और आप हिंदी बोलने लगे, तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको ज्यादा मुंह खोलना पड़ता है और ज्यादा वाइड खोलना पड़ता है, तभी आपकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन निकलेगी वर्ड्स की, जो सामने वाला समझ पाएगा। और जो हिंदी है वो कम मुंह खोल के भी बोली जा सकती है, सामने वाला समझ जाएगा। इसका बेसिक रीजन ये है कि हिंदी जो है वो संस्कृत से आती है। संस्कृत के जो हमारे मेजर वर्ड्स हैं, वो मेजर लेटर्स हैं, वो कम मुंह खोल के भी बोले जा सकते थे, क्योंकि वो बनाई ऐसी गई थी, उसकी स्क्रिप्ट ऐसी थी। इंग्लिश की स्क्रिप्ट ऐसी नहीं है, इसके लिए इसको पूरा वाइड मुंह खोल के बोला जाता है। अब हम आते हैं, इससे पहले कि मैं रीडिंग स्किल्स पर आऊं, किसी को कोई सवाल? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, तो अब हम रीडिंग स्किल्स पर आते हैं। बेसिकली रीडिंग स्किल्स में इंग्लिश को जब भी आप रीड करने लगे, तो एक तो ये उस चीज पर डिपेंड है कि आप सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। हिंदी में आप कुछ भी बहुत फ्लैट तरीके से बोल सकते हैं कि मेरे को यहां जाना है, लेकिन इंग्लिश में आई हैव टू गो देयर, आपने वहां जाने पर स्ट्रेस करना है या वहां पर स्ट्रेस करना है, जिससे पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। अब हम आते हैं कि जब भी आप रीड करते हैं, तो रीड करने का आपका स्टाइल क्या होना चाहिए। रीड करने का स्टाइल ये होता है कि आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, या आप कोई बुक पढ़ रहे हो, या आप कोई हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं जिसके नीचे सबटाइटल आ रहे हैं। उसको रीड करने का स्टाइल ये होता है कि जब भी आप कुछ रीड कर रहे हैं, तो आपकी नजर हमेशा उसके अगले वर्ड पर होनी चाहिए, ताकि आप अटके नहीं। वो कैसे होगा? वो प्रैक्टिस से आता है। नेक्स्ट, सेम टाइम पर जो वर्ड है और सेंटेंस है, उसको हम हिंदुस्तानी लोग क्या करते हैं, हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में उसको पहले ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, हमारी मदर टंग जो है वो इंग्लिश नहीं है। तो इसलिए हम पहले उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, फिर आगे बोलते हैं। मान लीजिए मैं और आप बात कर रहे हैं,
तो मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू बी प्रेजेंट टुमारो इन द क्लास। तो अब मैंने ये जो बोला, इसके ऊपर भी अगर मैं इसको पहले ट्रांसलेट करूंगा, मैं कल क्लास में आऊंगा या नहीं आऊंगा, मैं कल क्लास में आऊंगा फिर मैं इसको बोल रहा हूँ, तो आपको बोलने में टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से सामने वाला वो ये नहीं समझ पाएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, और उसका कंसंट्रेशन आपकी बात की तरफ बिगड़ जाएगा। तो इसलिए ये ट्रांसलेशन जो हम लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज में करते हैं फिर इंग्लिश में बोलते हैं या इंग्लिश समझने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। हमें पहले उस लैंग्वेज के उस सेंटेंस को बोलना चाहिए, और ट्रांसलेशन उसका जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब उसका ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन आपके दिमाग में होना शुरू हो जाएगा। ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी 400 टेराबाइट होती है। वो इतनी जल्दी इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर देता है कि आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलता कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस से आता है। नाउ क्या होता है कि कई बड़े बड़े वर्ड होते हैं जो आप नहीं प्रोनाउंस कर पाते ढंग से, या आपको उसकी स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम होती है। सबको होती है, मुझे भी होती थी जब मैं पहले इंग्लिश सीख रहा था, तो मुझे भी होती थी। अब कई वर्ड आ जाते हैं जैसे साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में जब आप बोलने लगते हैं, हमारे यहाँ हमारी रीजनल लैंग्वेज में इसको बोला जाएगा साइकोलॉजी, जबकि ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसको बोला जाता है साइकोलॉजी। तो अगर आपको कोई ऐसा वर्ड लग रहा है तो आप उस वर्ड को ब्रेक करें। ब्रेक कैसे करेंगे? जहां पर पॉज आ रहा है, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ऐसे आपने ब्रेक किया इस वर्ड को, तो आप इसको प्रॉपर फिर प्रोनाउंस कर पाएंगे, और आपको आगे भी ये वर्ड फिर प्रोनाउंस करने में, जितनी बार ये वर्ड आएगा आपके लाइफ में, उतनी बार आपको प्रोनाउंस करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई क्वेश्चन यहां तक? हेलो? One No, question. sir. Sir, one question. हेलो या प्लीज। हेलो यस, सर, इंग्लिश सीखने के लिए क्या ग्रामर जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि ओके सर। ग्रामर में जो आपके मेजर टेंसेस हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, प्रेपोजिशन ओके कंजंक्शन का यूज है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, ओके ये सब अगर आपके प्रॉपर नहीं है तो आप कभी भी नहीं बोल पाएंगे। फॉर सर, आप एग्जाम्पल, तो यस सर। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं ये कर रहा था और मैं आगे भी ये करना चाहता हूं, तो इसको आप इंग्लिश में जब बोलेंगे, आई वॉज डूइंग दिस टास्क एंड आई स्टिल वांट टू कंटिन्यू दिस टास्क फर्दर, तो आप, अगर आपने इसमें से एक भी वर्ड मिस कर दिया तो सेंटेंस का पूरा मीनिंग बदल जाएगा, और सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि आप क्या उसको कहना चाहते हैं। अभिषेक जी, अब ये बताएं कि ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, हम्म, क्या हम ये चीज भी कवर अप करने वाले हैं अपने कोर्स के अंदर कि किस तरह से ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, किस तरह से हम ग्रामर बिल्कुल को इम्प्रूव कर सकते हैं? जी, बिल्कुल हम लोग ये करने वाले हैं। ये ओके जब सर। पूरा कोर्स डिजाइन होगा, पूरा कोर्स एक्चुअली डिजाइंड है, लेकिन इसकी जब क्लासेस और सेशंस होंगे तो उसके अंदर ग्रामर का ऑलमोस्ट डेली एक सेशन है, जिसके अंदर हम लोग नाउन प्रोनाउन से लेकर, प्रॉपर नाउन से लेकर पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा आ गया, उस दिन आप हाँ प्रॉपर इंग्लिश बोलने लग जाएंगे और फ्लुएंटली बोलेंगे। क्योंकि ओके ये, इसके लिए, यहां तक पहुंचने के लिए आपको वर्ड्स प्रॉपरली बोलने आने चाहिए, राइट? आज तो डेमो क्लास है, आज मैं बहुत ज्यादा ग्रामर नहीं इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है? क्योंकि अगर आज ओके के दिन में ग्रामर इंक्लूड कर दिया तो पीपल विल से दैट दिस इज वेरी हाई फाई इंग्लिश। या राइट नाउ ठीक है, सो राइट राइट नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन हमारे हिंदुस्तानियों का लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो ये हमारा लेड बैक एटीट्यूड है, कि हो जाएगा, चलता है। ये जो चलता है वाला एटीट्यूड है, ये हमें छोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा आप सब लोग ये एटीट्यूड कैरी करते हैं,
प्लीज डोंट टेक इट रॉन्ग, लेकिन मैं भी एक हिंदुस्तानी हूं, मेरे अंदर भी ये किसी टाइम पे था. So this comfort zone that we're talking about is when we don't want to unlearn the things and learn new things. क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. आपको जब स्कूल में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सिखाया गया था, अब आपको ये सारा जो है पीछे छोड़ना पड़ेगा. उसके पीछे एक रीजन है कि आज जो इंटरनेशनल इंग्लिश चलती है वो चलती है मिलिट्री इंग्लिश पे. मिलिट्री इंग्लिश होती है A एज इन अल्फा, B एज इन ब्रावो, C एज इन चार्ली, D एज इन डेल्टा. आप सब लोगों ने बॉर्डर मूवी देखी होगी. तो उसमें जब वो बोलता है अल्फा कॉलिंग चार्ली, ब्रावो कॉलिंग चार्ली, डेल्टा, ये सब जो बोलता है, ये वर्ड्स जो होते हैं ये मिलिट्री इंग्लिश से निकाले गए हैं, जो पूरे वर्ल्ड की मिलिट्री में यही यूज होते हैं, और आज इंटरनेशनल इंग्लिश में भी यही यूज होते हैं. सो इस कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना होगा. सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं तो इस कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन, कुछ लेटर्स की प्रोनाउंसिएशन जो आप करते आए हैं वो हम हिंदुस्तानी इंग्लिश में करते आए हैं, विच इज नॉट एन इंग्लिश स्टैंडर्ड. ये देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि रीजनल और मदर टंग इन्फ्लुएंस आता है. रीजनल और मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है कि आप मान लीजिए आप बिहार से हैं या यूपी से हैं या तमिलनाडु से हैं, तो तमिलनाडु के अंदर भी जब आप बात करते हैं तो वहां पर येलो जो है वो येलो हो जाता है. ये उनका रीजनल इन्फ्लुएंस है. उनके यहाँ ऐसे ही बोला जाता है, तो वो लोग उस चीज से बाहर नहीं आ पाते. आपने कहीं भी देखा होगा किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जो तमिलनाडु में है, उसका जो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट होता है वो कभी भी साउथ इंडिया से नहीं होता. उसका रीजन ही यही है कि वो येलो को येलो कर देते. सो इस चीज को ओवरकम करने के लिए भी आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा. मदर टंग इन्फ्लुएंस, मेरी मदर टंग पंजाबी है. अब मैं पंजाबी में हम लोग बड़े कंफर्टेबल होके बोलते हैं टमाटर. तो वो टमाटर एक्चुअली हम लोग बहुत हार्ड वाला टी बोलते हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग किसी को डंडा मार रहे हैं. सो दिस शुड कम टू अ टमेटो, टर्निंग थ. सो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपकी इंग्लिश परफेक्ट बनाएंगी. इफ you are not able to speak the words or letters properly, then you won't be able to learn them on the appropriate manner that the people could understand it. Now we come to, in order to learn English language, it is mandatory to forget the comfort zone. Again वही बात मैं कह रहा हूँ कि आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा. और जब आप ये कंफर्ट जोन छोड़ेंगे और आप अपना मूवमेंट्स, अपने माउथ की मूवमेंट्स को, नई मूवमेंट्स सीखेंगे, तब आपका जो लर्निंग हैबिट्स है और आपका जो ग्रास्पिंग पावर है वो भी बढ़ेगा. सो इट ऑल कम्स विद प्रैक्टिस. नाउ एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द कंफर्ट जोन पार्ट? नो सर. नो सर. सर प्रैक्टिस कैसा होनी चाहिए? प्रैक्टिस बेसिकली देखिए, जो प्रैक्टिस है वो अलग अलग लेटर्स को, माउथ की मूवमेंट, टंग की मूवमेंट, कहां पर टंग टकरानी चाहिए आपका कोई भी वर्ड या लेटर बोलते हुए, कहां पर आपके जॉ की मूवमेंट होनी चाहिए. जॉ मतलब आपका जो अंदर मसूड़े हैं उनकी मूवमेंट कहां होनी चाहिए, और जब भी आप कोई लेटर बोल रहे हैं तो वो बोलते हुए आपकी टंग को कहां पर टच करना है, वो ये मूवमेंट जो है ये प्रैक्टिस से आती है. Okay, sir. Obviously I'll be talking about certain words with you guys. जो words हैं वो words कैसे बोले जाएंगे, उसके लिए मैं एक लाइव सेशन लूंगा आप लोगों का अलग से. उस लाइव सेशन में मैं आपको अपने माउथ की मूवमेंट्स खुद दिखाऊंगा कि ये लेटर या ये वर्ड बोलते हुए मूवमेंट कहाँ आती है. ठीक है, कैसे होती है ये मूवमेंट, तक ये वर्ड आप कैसे सही से बोल पड़ेंगे, ये भी दिखाऊंगा मैं आपको. ठीक है. नाउ इम्प्रोवाइजिंग वोकैबुलरी. वोकैबुलरी होता है आपका वर्ड मीनिंग्स. आपको वर्ड के मीनिंग्स नहीं पता तो आप उस वर्ड को यूज कहां से करेंगे. इसको प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका है
मैं आपको रोज के 10 वर्ड दे दूं और 20 वर्ड दे दूं, उसका मीनिंग आप ढूंढे, ये स्पून फीडिंग होता है। मतलब मैं आपके मुंह में लाके चम्मच डाल रहा हूं और आप उस चम्मच से आगे खाने, आप सिर्फ चबाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। बट द बेस्ट वे अपनी वोकैबुलरी और वर्ड मीनिंग्स बढ़ाने का है, रोज के आप 10 वर्ड्स डिक्शनरी से देखें और रोज के 10 वर्ड आप न्यूज़पेपर से देखें। इन 10-10 वर्ड्स को लें और इनका मीनिंग देखें क्या है। डिक्शनरी आजकल ऑनलाइन भी सबके पास है, मोबाइल्स पर एप्लीकेशन भी है, सबके पास स्मार्टफोन्स होते ही हैं। तो उनके मीनिंग्स देखें। अगर कोई फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो ऑब्वियसली आई एम देयर, आप उस वर्ड को नोट कर लीजिए, जैसे हमारी क्लास हो आप वो वर्ड्स मेरे को बता दीजिए, मैं उन वर्ड्स के मीनिंग्स आपको बता दूंगा। हाँ, मैं भी शेक्सपियर नहीं हूँ जिसको 2,80,000 वर्ड्स आते हो लैंग्वेज के, लेकिन हाँ जितने मेरे को आते हैं, जितने मैं कॉमनली यूज करता हूँ, वो मैं आपको बता सकता हूँ। और इन वर्ड के मीनिंग्स जब आपने ढूंढ लिए तो इन वर्ड्स का आप ट्रैक रखें, ताकि अगली बार जब ये वर्ड आपके सामने आए तो आपको इसका मीनिंग पता हो और आप इसका मीनिंग एकदम से जैसी वर्ड आए तो आप समझ पाए इसको। नाउ यूज दीज वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस। अब आप इन वर्ड से सेंटेंसेस बनाएं। मान लीजिए मेरे पास वर्ड है बाइसिकल। आपने स्कूल में पढ़ा होगा बाईसाइकिल, गलत वर्ड है, गलत प्रोनाउंसिएशन है, बाइसिकल होता है। सो बाइसिकल से आपने वर्ड सेंटेंस बनाया। आपने कोई नया वर्ड लिया जो आपके लिए बिल्कुल नया, आपने कोई नया वर्ड लिया, कोई नया वर्ड आपके सामने आया, उसका आपने मीनिंग ढूंढा, और क्या पता वो वर्ड मेरे लिए भी कभी नया हो सकता है। मैंने आपको बताया मैं शेक्सपियर नहीं हूँ कि मेरे को 2,80,000 वर्ड्स आते हो। तो आपको ये करना है कि ये 10-10 वर्ड से सेंटेंसेस बनाए, और उन वर्ड्स को आप अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे, कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप चाहे मेरे साथ बात कर रहे हैं, या आप मंजीत जी के साथ बात कर रहे हैं, या आप अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे हैं, या फैमिली से बात कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, ये वर्ड में यूज करने की कोशिश करें। आप दूध लेने जा रहे हैं घर के लिए, तो आप जो आप सिर्फ ये बोले, आई एम जस्ट गोइंग टू गेट मिल्क फॉर द होम, फॉर माय होम। सो इंस्टेड ये कहने की जगह कि मैं दूध लेने जा रहा हूं घर के लिए, आप ये बोले कि आई एम गोइंग टू बाय मिल्क फॉर होम। राइट, ऐसे नाउ ये एक्सरसाइज अगर आप डेली बेस पे रिपीट करते हैं तो मेरी गारंटी है आपकी वोकैबुलरी कम से कम महीने में 250 वर्ड्स की तो हो ही जाएगी। 250 नए वर्ड सीखने एक महीने में आसान काम नहीं है, क्योंकि कुछ तो याद भी नहीं रहेंगे। सो अगर आप 250 वर्ड्स अगर आप डेली कर रहे हैं, सॉरी मंथली कर रहे हैं, तो 250 की जगह अगर आपको 250 में से 150 भी याद रहता है, इट्स एन अचीवमेंट। जनरली मेरी अगर आप मेरी माने तो किसी को 150 वर्ड भी याद नहीं रहते। सो इफ यू आर मेमोराइजिंग 150 वर्ड्स अ मंथ, that comes to around 1800 words per year, 1800 वर्ड एक साल के। और कई बार तो कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनको आप भूल ही नहीं पाते। मैं तो आपको 20 वर्ड्स डेली के कह रहा हूँ। 20 वर्ड्स डेली कम्स टू 600 वर्ड्स। 600 में से अगर आपने 200 भी याद रख लिए तो वो भी आपके लिए एक अचीवमेंट है। अगेन इस एक्सरसाइज को आप रिपीट करेंगे, जब आप रिपीट करेंगे तो आपकी डेली लाइफ में इनको यूज करेंगे, देन यू विल बी, जितना जितना आप वर्ड को यूज करते रहेंगे उतना वो आपके माइंड में बैठता रहेगा। सो दिस इज हाउ टू इम्प्रोवाइज योर वोकैबुलरी। I'll tell you what my father did. Excuse me. My father was in a very good habit to read dictionary. तो वो इतना डिक्शनरी पढ़ते थे, वो ऑफिस से आते थे, रात को डिक्शनरी लेके बैठ जाते थे, रोज आधा घंटा डिक्शनरी पढ़ते थे। So some of the words he got through the dictionary and I wasn't even aware of. मुझे पता ही नहीं था कि ये वर्ड्स क्या हैं। वो तो जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, अपनी लाइफ में कुछ वर्ड्स यूज करता गया, तब जाके मुझे समझ में आया। So this is how, you know, people grasp more and more vocabulary.
नाउ वी कम टू द मदर टंग एंड रीजनल इन्फ्लुएंस। ये मैं आपको पहले एक इसका ब्रीफ दे चुका हूँ, ये क्या होता है। मदर टंग इन्फ्लुएंस हमारी लैंग्वेज में क्या होता है कि मदर टंग हमारी कौन सी है, हिंदी है हमारी मातृभाषा। अब आप में से कोई हो सकता है यूपी से, उसकी भोजपुरी भी हो सकती है, कोई हो सकता है तमिलनाडु से, कोई हो सकता है राजस्थान से, उसकी मारवाड़ी भी हो सकती है। सो यू नो उस लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स जब हम पिक कर लेते हैं तो उसी स्टाइल में, उसी डायलेक्ट में हम लोग इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, जिससे ना तो हम इंग्लिश बोल पाते हैं ढंग से, ना अपनी मातृभाषा बोल पाते हैं। तो ये जो इन्फ्लुएंस है, इसको मदर टंग इन्फ्लुएंस कहते हैं। ये जनरली हमारी मातृभाषा से इन्फ्लुएंस होके आता है, हमारे पेरेंट्स से आता है, हमने इनहेरिट किया होता है। ये हमने अपने पेरेंट्स से एज अ तोहफा लिया होता है कि ये ऐसा आएगा ही आएगा। लेकिन इसको इम्प्रूव करना जरूरी है, क्योंकि आपको आगे जाके, आप में से कोई स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कोई कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, तो उनको आगे जाके कदम बाहर मार्केट में रखना है। तो उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए these are the basic rules that you need to learn, that you need to grasp. You need to get rid of your mother tongue influence and regional influence. Regional influence भी मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे चुका हूँ, और ये भी लिंग्विस्टिक स्केल से आता है, जो आपकी पर्टिकुलर एरिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है, उसको जब हम पिक करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उसी एक्सेंट में बोलने के लिए इंग्लिश, तो ये एक हमारे लिए खुद ही ड्रॉबैक हो जाता है। सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसका मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल भी देता हूं। ये है एग्जांपल। अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ये आपकी कॉमन लाइफ में सबसे कॉमन एग्जांपल होंगे ये, जब हम ज और ज में डिफरेंस नहीं कर पाते। जब हम बोलते हैं कि हमें किसी चीज की नीड है, तो हम लोगों को जरूरत बोलना चाहिए। हम लोग क्या बोलते हैं? जरूरत। ये बहुत कॉमन एरर्स है। तो ज और ज में डिफरेंस नहीं कर पाते। हम लोगों को इंग्लिश में बोलना है जू, लेकिन हम बोल देंगे जू। फिर आता है फ और फ। फिलॉसफी होता है, फिलॉसफी नहीं होता। फिर आता है ब और व। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है यूपी और बिहार वाले एरिया में, और पंजाब में भी। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग बोलना चाहते हैं विस्की या वैन, तो हम लोग बोलते हैं विस्की वैन। हम लोग अपनी तरफ से वो बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ये चीज बोलने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि हम व और ब में कंफ्यूज हो जाते हैं, और हमें खुद को नहीं पता चलता कि हम उसमें कंफ्यूज हैं, हम लोग गलत बोल रहे हैं। एक सबसे ज्यादा कॉमन एरर जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हुए करते हैं, वो है श और स का। हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी हुए थे, लाल बहादुर शास्त्री नहीं हुए थे। जो शहर है उसका नाम है शिमला, शिमला नहीं है। तो ये जो श और स का एरर है, ये कुछ एरर्स अगर हम अपने ठीक कर ले तो हमारा रीजनल इन्फ्लुएंस और मदर टंग इन्फ्लुएंस दोनों दूर हो जाएगा। ये भी जॉ मूवमेंट और टंग मूवमेंट से ठीक होता है, और इसके लिए आपको बेसिक लैंग्वेज होनी जरूरी है, क्योंकि बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश में जब आप बात करते हैं तो हिंदी से अगर आप कंपेयर करेंगे, हिंदी में एक ही व होता है और इंग्लिश में दो व होते हैं, एक वी से व और एक डब्ल्यू से व। तो दोनों व में फर्क है इंग्लिश में। अब ये फर्क आपको तब पता चलेगा जब मैं आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगा लेटर्स की। अभिषेक जी आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अब प्लीज, आप प्लीज। ये बता दें कि ये जो कोर्स रहने वाला है, इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स जो है कवर अप करने वाले हैं।
बिकॉज आई थिंक सभी को अंदाजा तो डेफिनेटली लग गया होगा कि किस तरह से पूरा का पूरा ये इंग्लिश का जो लैंग्वेज कोर्स है वो आप लोगों को सिखाया जाएगा। मैं जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। यहाँ पर करना क्या है, आपको जब भी आप ज्वाइन करेंगे सिर्फ इस तरह की प्रेजेंटेशन के जरिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी वो पूरी फुलफिल कर दी जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो चीजों में जैसे अभिषेक जी ने बताया कि जहां पर आप लोगों को बताना है, प्रैक्टिकली चीजों को करना है, तो डेफिनेटली वहां पर ये कोई स्लाइड शो का इस्तेमाल नहीं करा जाएगा, स्लाइड्स का इस्तेमाल नहीं करा जाएगा। वहां पर आपके सामने जो है अभिषेक जी बिल्कुल लाइव कैमरे के सामने खड़े रहेंगे और आपको जिस तरह से हम क्लास में बैठ के 1-to-1 टीचर को देख के चीजें सीखते हैं वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर भी सिखाया जाएगा। एक बार अभिषेक जी पूरे कोर्स के दौरान जो हमारे मेजर टॉपिक्स हैं एक बार वो आप ब्रीफ कर दें। अपार्ट फ्रॉम दैट हम जो है कि अभी ये बैच जो है वो कब से स्टार्ट कर रहे हैं और इस विषय में जो भी आप डिटेल देना चाहते हैं वो एक बार दे दें। वो मैं देता हूँ अभी 2 स्लाइड के बाद दूं मंजित जी, वो चलेगा? ठीक है, करिए। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मदर टंग इन्फ्लुएंस और रीजनल इन्फ्लुएंस है इससे दूरी कैसे बनाई जा सकती है। सो अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन, appropriate syllables or syllable stress, appropriate vowel sounds, consonant sounds, jaw movements, tongue movements और tooth placement। आपके दांत पे जीभ कहाँ टकरानी चाहिए, आपका दांत कहाँ बीच में नहीं आना चाहिए कोई भी वर्ड बोलते हुए, इससे आती है प्रॉपर साउंड इंग्लिश की। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग इंग्लिश में सबसे बड़ी मिस्टेक जो हमने सबसे पहले इंग्लिश सीखते हुए करी थी वो क्या थी। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? রাজগামী আজকে বিরক্ত হয়ে গেছি কি বলবো কাজে 26। ओके, कोई और बता सकता है? 1 किसने बोला ये? विशाल ने बोला। विशाल, गुड। एटलीस्ट देयर इज समबडी हु नोज। इंग्लिश में सिर्फ एक ही अल्फाबेट होता है। जैसे हिंदी में वर्णमाला होती है उसके नीचे अक्षर होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में एक अल्फाबेट होता है उसके नीचे लेटर्स होते हैं। लेटर्स को डिवाइड किया जाता है वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स में। तो ये बेसिक है, ये बेसिक हमने गलती करी है इंग्लिश सीखते हुए। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल होता है जो शॉर्टेस्ट साउंड होती है वर्ड की, उसको सिलेबल कहते हैं। जब भी आप कोई वर्ड बोलने लगे तो उसके बीच में जहां पॉज आता है उसको सिलेबल कहते हैं। आपने वर्ड बोला अपोलोजाइज, अपोलोजाइज 4 सिलेबल का वर्ड है। अब इसमें कहां पर स्ट्रेस देना है वो सीखने की जरूरत होती है, तभी वर्ड वो प्रॉपरली बोला जाएगा। अब फॉर एग्जांपल प्रेजेंट और प्रेजेंट दोनों अलग अलग वर्ड है। इस समय मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा। प्रेजेंट का मतलब होता है कि आप क्लास में प्रेजेंट हो, और प्रेजेंट का मतलब होता है कि आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हो। प्रेजेंट जो है वो नाउन है और प्रेजेंट जो है वो वर्ब है। ये चीजें सीखनी बहुत जरूरी है, वरना आपका पूरे वर्ड का मतलब ही बदल जाएगा। जो सामने आपका क्लाइंट है या आपका फ्रेंड है या कोई भी है, वो समझ ही नहीं पाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। पूरे मैंने आपको बताया था कि एक एक वर्ड पर पूरे मतलब बदल जाते हैं सेंटेंस के। किसी का कोई सवाल यहां तक? हेलो हेलो। नो सर, नो सर। अब तक सब समझ में आया? यस सर। So now let me just guide you on a few of the new courses that are also coming up. Hospitality management, marketing and market management, journalism and acting are also coming up. Now let me just tell you हमारा जो कोर्स है उसके टॉपिक्स कैसे होंगे। पहले तो हम बेसिक इंग्लिश सीखेंगे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस हाँ सर, सर, हाँ सर, यस यस यस। तो मैं आपको पूरे टॉपिक ही बता देता हूँ।
देखिए इसमें आएगा पहले बेसिक इंग्लिश ओवरव्यू, एक मैंने आपको आज छोटा सा हिस्सा दिया ओवरव्यू का। फिर इंग्लिश लैंग्वेज है क्या ये बताया जाएगा, अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। देन इंग्लिश एज इज स्पोकन इन इंडिया, इंडिया में हम इंग्लिश कितनी बोलते हैं तो नहीं बोलूंगा, कितनी घिसते हैं बोलूंगा, ठीक है। नाउ डिफरेंसेस बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेजेस। फिर आएगा बेसिक इंडियन एरर्स मेड व्हाइल लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि आप गलती कहाँ कर रहे हो तो उसको सुधारोगे कैसे। मिलिट्री और इंटरनेशनल इंग्लिश विद इंग्लिश अल्फाबेट, वावल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट्स, इंट्रोडक्शन टू ग्रामर, इसमें नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सिनोनिम्स एंड एक्रोनिम्स, prepositions and conjunctions, tenses, subject verb agreement, syllable stress, voice and accent training, positioning of mouth, tongue, jaw, lips। इसके 4 सेशंस होंगे जिसमें प्रैक्टिस भी होगी, ये लाइव सेशंस होंगे। इसमें मैं खुद आपको मूवमेंट सिखाऊंगा। और उसके बाद 4 टेस्ट होंगे, और जिसमें से 2 वोकल टेस्ट होंगे और 2 रिटन टेस्ट होंगे और एक ओवरऑल टेस्ट होगा जो फाइनल टेस्ट होगा। लगभग 15 दिन का एक बेसिक कोर्स है ये, और इसके बाद अगर किसी को और जरूरत पड़ती है देन वी विल टेक फर्दर एक्शंस ऑन द कोर्स एज वेल। और इसके अंदर आपको जो ग्रामर का सेशन है वो 6ठी या 7वीं क्लास से शुरू होगा, डिपेंडिंग अपॉन द क्लास की ड्यूरेशन आप लोग कितनी लेते हैं। किसी को अगर नहीं भी समझ में आया तो वी कैन ऑब्वियसली इंक्रीज द क्लास ड्यूरेशन एज वेल। हम लोग आपकी लर्निंग के हिसाब से चलेंगे, राइट मंजीत जी? या डेफिनेटली। किसी को कुछ नहीं समझ में आता तो वो भी हम उसी समय उसका क्लियर करेंगे डाउट। कोई सवाल किसी का? नो सर। सब समझ में आ रहा है कि सबको? यस सर। जी सर। तो एनीथिंग यू फील लाइक आस्किंग प्लीज गो अहेड। हेलो सर। यस प्लीज। सर मेरा एक सवाल है, मतलब सवाल नहीं, मतलब मेरा जो मानना है कि सर हम लोग जितना भी सीख ले, पर जब तक हम लोग मतलब फ्रेंड से या फिर किसी से बात करते वक्त जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर लेते तो तब तक हम लोग फ्लुएंट नहीं हो पाएंगे, है ना सर? बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी आपने देखो जैसे एक वर्ड बोला फ्लुएंट, ठीक है, आपने इसको भी प्रॉपर्ली नहीं बोला, आपने इसको बोला फ्लुएंट, ठीक है, लेकिन ये वर्ड होता है फ्लुएंट, ठीक है। सॉरी मैं उसी समय गलती निकाल देता हूँ, लेकिन अगर मैं निकालूंगा नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कहाँ गलत है। थैंक यू सर। ठीक है, तो ये आपको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। चाहे तो आप मेरे से भी स्टार्ट कर, मेरे से भी बोलना स्टार्ट करें, मेरे से गलती करोगे तो मैं कोई किसी को खा तो जाऊंगा नहीं, राइट? आई विल बी टेकिंग इट वेरी इंटरैक्टिवली। आप लोग इंटरैक्ट करें मेरे से जितना कर सकते हैं। गलत बोल रहे हैं कोई बात नहीं, गलत बोलिए यार, मैं उसमें बैठा हूँ ठीक करने के लिए, मेरा काम ही यही है। ओके, थैंक यू अभिषेक जी। और किसी को कोई सवाल है तो आप ये स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगी, ठीक है। आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर जो है एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फर्दर क्वेरी के लिए। ये एक ईमेल आईडी आपको दिया गया है, आप ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं अभी, और इस ईमेल आईडी पे भी आप जो है अपनी जो भी क्वेरी है वो ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो नंबर है सिर्फ व्हाट्सएप नहीं है, आप अगर इस पे कॉल करके बात करना चाहते हैं, 1 मिनट दीजिएगा, कॉल करके अगर बात करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। सुबह 11 बजे से लेके शाम को 5 बजे के बीच में कभी भी कॉल भी कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को बता दूं ये जो कोर्स रहने वाला है इसका ड्यूरेशन कैसे रहेगा, किस तरह से चलेगा। ये कोर्स आपका 30 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 30 अप्रैल से शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, जो अब आज का टाइम है, बिल्कुल यही टाइम आपका क्लास का टाइम रहेगा, जिसमें जो भी क्लासेस होंगी वो आपकी लाइव क्लासेस जैसे आज हुई है, तो आज भी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, वो आगे भी इसी तरह से रिकॉर्डिंग्स आपकी होती रहेंगी।